standard? Your roll number? 17. Name? Pawan. What do you understand by payroll management? क्या होता है हिंदी में बताओ, जो आता है वही बताओ. अच्छा बताओ, what are advantages of payroll management? Disadvantage? What is social security? What do you know about compensation package? Next. Sunny? Roll number? Roll number? What do you understand by payroll management? Bonus and taxes are payroll management. What do you mean by payroll? What do you mean by social security? What are the contingencies covered in social security? What are some advantages and disadvantages of payroll? What are important components of salary? Roll number? Name? Abdul Rahman. आप ऑनलाइन क्लास नहीं करते हैं, उसके बाद आप कैसे पढ़ते हैं? Syllabus is over, and you will not get this in your university exams. This was an add-on course, जो कि एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्स होता है आपको रेडी करने के लिए, ताकि आप आंसर कर सकें, इसके लिए बताया जाता है. Anyway, what is payroll management? आप बताइए क्या आप बोलना चाहेंगे आप? I'll ask you those questions. Next. We will start a new topic, a new chapter. I will request you to make a separate copy of this chapter. ठीक है, ताकि आपको ये चीज ध्यान रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं और लिंक ना टूटे, क्योंकि थर्ड ईयर में आपके पूरे सिलेबस में है ये. HR is completely in your थर्ड ईयर सिलेबस. ठीक है, थर्ड ईयर के सिलेबस में पूरी तरीके से ये है, तो आपको दोनों तरीके से बेनिफिट होगा. एक तो इंसाइट मिलेगी उसकी कि ये इंडस्ट्री में किस तरीके से यूजफुल है, और दूसरा आप अपने कोर्स का तैयारी पहले ही कर चुके होंगे. ठीक है,
This is the first day of the HR workshop. Okay. See, we will start the introduction. HRM. Okay. This is human resource management. क्यों human को resource बोला जाता है? पहले आप बताइए four factors of production क्या क्या होता है? Wait, you tell me. What are the factors of production? Ma'am, No, wait. You tell me. What are the four factors of production? Yes, Ruchi, tell me. What are four factors of production? ma'am, land, labor, capital, entrepreneur. Okay. Land, labor, capital, and entrepreneurship. This is a matter of shame. This is such a basic thing. And you're studying business management. And you're halfway through the course. Four factors of production are land, labor, capital, and out of these four factors of production, ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आपको क्या लगता है कि कौन सा इसमें से एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा? Active. आप आज से इस क्लास को एक फ्रेश स्टार्ट मानिए, ठीक है? Don't miss the class. I already told you if you have the settings somewhere else, so it's fine. आप एक पढ़ाई और अच्छे से क्लास, ठीक है? Don't miss. लोग नहीं आते या आपकी प्रॉब्लम नहीं, आप साथ में नौकरी लेके नहीं। Land, labor, capital, and production. Can you tell me which is the active factor of production? Labor. Very good. Labor is active factor of production. क्यों इसको active factor और बाकी सबको passive factor of production बोला जाता है? इसलिए क्योंकि labor ही एक ऐसा factor of production है जो बाकी factor of production की efficiency को बढ़ाने में helpful होता है, ठीक है? Land अकेले कुछ नहीं कर सकता है जब तक इसमें लेबर का काम ना लगे। लेबर यानी पूरा वर्कफोर्स यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप नॉच सारे लोग हैं, सब लेबर में ही आया, समझ गए? कैपिटल अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। कैपिटल को मल्टीप्लाई करने के लिए कौन चाहिए? कौन करवाएगा? लेबर। मैन पावर काम करेगा तभी तो कैपिटल मल्टीप्लाई करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो स्किल्स चाहिए, ठीक है? These skills are provided by labor. लेबर माने जो मैनेजमेंट लेवल के स्किल्स, यानी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो हाई लेवल मैनेजमेंट, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, दे प्रोवाइड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर सेम भी रहता है ना दो कंपनीज का, मान लीजिए दो कंपनी, दो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेम है, फिर भी जहां पर की लेबर बेहतर है, जहां पर की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बेहतर है, स्किल्स में लेबर का दिमाग, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, वहां उन बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ज्यादा बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे हम आपको बताते हैं, इंडिया का लेबर स्किल्ड माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, है ना?
इंडिया के लेबर मैन पावर को काफी स्किल्ड, आईटी वगैरह में आप देखें इंडिया का कितना डिमांड है ना, डिमांड है। और बल्कि यहाँ का जो लोअर लेवल ऑफ मैन पावर भी है, आप देखे होंगे कि यहाँ के मजदूर ओमान के, सऊदी अरेबिया वगैरह में कितने जाते हैं, माने स्किल्ड मैन पावर भी जाता है और अनस्किल्ड मैन पावर भी जाता है ना। तो जैसे अफ्रीका वगैरह की कंट्रीज में, अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट, यू नो दिस, अफ्रीका वगैरह में जो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको आजादी बहुत लेट मिली है, लेकिन 1975 76 इस तरीके से मिली है आजादी। तो अफ्रीका में क्या बहुत ज्यादा है क्वांटिटी में, नेचुरल रिसोर्सेज है ना, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है अफ्रीका में, लेकिन उस नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कैसे किया जाए इफेक्टिवली, वो स्किल नहीं है उसके पास। तो अभी भी आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो इंडिया से जाते हैं, ज्यादातर लोग जो कि एशियन मैन पावर को भी स्किल मैन पावर में माना जाता है, यहाँ के लोग वहां जाकर के वहां के लोगों को यूज करके वहां पे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डिलीवर कर रहे हैं एंड दे आर हेल्पिंग देम ग्रो इन द इकोनॉमी। जैसे जुबली लाइफ साइंस, ये सब एक इंश्योरेंस कंपनी, काफी बड़ी एमएनसी है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है कि यहाँ के सीईओ वगैरह आप जो टॉप रैंक के लोग को देखेंगे वो जनरली आपको इंडियन मिलेंगे या किसी और कंट्री के मिलेंगे, स्विट्जरलैंड के मिलेंगे, लेकिन अफ्रीकन नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन लोगों को उस कल्चर में आते 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 अभी समय लगेगा, समय लगेगा और उनके पास वो टेक्निकलिटीज नहीं है। समझ में आई बात? जैसे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के जंगल, ये लोग बहुत कन्फाइंड रहते हैं ना, बस आप अपने में सिटी में रिस्पॉन्स से जहाँ देखिए रेलवे स्टेशन भी नहीं, ठीक है, यहाँ रेलवे स्टेशन भी नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने जोन को, अपने लैंड को एक्साइज नहीं किया, टैक्स नहीं किया, और आज आप ऐसी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है जो आप नेम करेंगे और वो वहाँ नहीं, सिप्ला, एल्केन, जाइडस, कैडिला, ब्रांडा, ये सन फार्मा, ये तो मेन कंपनीज मैंने बताई है। जो छोटी छोटी कंपनीज होती है, बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनी सब है वहां, वो क्या करती है, वहां के लोगों को यूज करती है। उन लोगों का बॉन्ड होता है कि 40% मजदूर आपको यहीं से लेना होगा, स्टेट को भी तो फायदा होना चाहिए, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए इस तरीके का। जैसे बिहार सरकार यहाँ पे किसी हॉस्पिटल को जमीन देती है, मान लीजिए देती है जमीन, क्या पाइए और हमारे यहाँ बिजनेस कीजिए, हॉस्पिटल बनाइए, लेकिन अग्रीमेंट में ये भी लिखा रहता है कि 60% मजदूर आपको ग्राउंड लेवल पे बिहारी लेने होंगे। हमें भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, हमारे यहाँ आप आएंगे, हम आपको जमीन दे रहे हैं, हम आपको बिजली सब्सिडाइज दे रहे हैं, हम आपको पानी देंगे, तो आप हमको क्या दीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, रोजगार दीजिए। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब कि ये लेबर जो होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस में, इसलिए क्योंकि ये एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। दिस लेबर इज वन पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर ड्राइविंग द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अंडरस्टूड? क्या ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इतना ही इम्पोर्टेंट हमेशा था? Have you studied industrial policy? Industrial policy फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, कितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़े? 1948, 1956, 1991 के बारे में क्या जानते हैं बताइए, जो भी याद है बताइए। फिर से बोलो, कोई और बताओ अच्छे से। ये बताया आज हाफ ही टोल्ड मी। नेशनलाइजेशन नहीं, नेशनलाइजेशन वही तो ठीक किया गया, सब कुछ तो नेशनलाइज्ड ही था। प्राइवेटाइजेशन बढ़ावा दिया गया, ठीक है, ब्रेक कर करके बोलो, जो जो मालूम है उसके बारे में फ्रेगमेंट्स में ही बोलो। He said privatization. रुचि यस मैम। बताइए एलपीजी के बारे में, 91 की पॉलिसी के बारे में। मैम इसमें पब्लिक सेक्टर का मोर कॉम्पिटिटिव था, तब पब्लिक सेक्टर थी जैसे कि, और इसका जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी 1991 में। और
ठीक है, आई विल टेल यू। देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ी आपने, लेकिन उसमें से एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, आज तक वो टर्निंग पॉइंट है, दैट वाज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के समय में फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौन थे बताओ? नो, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव was the prime minister and finance minister was मनमोहन सिंह। 1991 की पॉलिसी के पहले हमारी इकोनॉमी एक शट इकोनॉमी थी, एक क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब सब कुछ नेशनलाइज था। क्लोज इकोनॉमी का मतलब नेशनलाइज नहीं होता है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब कि हम लोग नेशनलाइज था, वो एक फीचर है, पर क्लोज इकोनॉमी का मतलब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत बहुत रेयर था। Whatever we produced, we consumed it within the country. हमारे देश की आबादी ही इतनी है कि हम जो प्रोड्यूस करते हैं, हम इतना ही इनफ प्रोडक्शन कर रहे थे जितना हम खुद खा पी के कंज्यूम कर सकते। ठीक है, देखिए, अगर अमेरिका में कुछ होता है तो उसका असर इंडिया में भी दिखता है। अगर कोई ट्रेड पॉलिसी वगैरह चेंज होती है, क्योंकि जो राजनीतिक कूटनीति चलती है वो उसमें हम अकेले नहीं हैं, राइट? आप यूएसएसआर के बारे में जानते हैं? यूएसएसआर जब टूटा तो रशिया उसका सबसे बड़ा पार्ट टूटा था। 1991 most of you were not born also, right? उस वक्त की ये पॉलिसी है कि उस वक्त यूएसएसआर एक सोशलिस्ट पैटर्न पे काम करने वाला कंट्री था। सोशलिस्ट संघ था, वो सोवियत संघ, ठीक है, यूनियन था, यूनियन ऑफ सोवियत संघ था। वो सोशलिस्ट इकोनॉमी पे काम करता था। रशिया आज भी सुपर पावर है ना, और यूएसएसआर की सबसे बड़ी कंट्री जो टूटा तो वो रशिया था। तो वो यूएसएसआर जब टूटा था तो वो 15 डिफरेंट कंट्रीज में टूटा था। तो उस वक्त हम भी क्लोज्ड इकोनॉमी थे और वो भी सोशलिस्ट विचारधारा पे चल रहा था। यूएसएसआर वो भी सोशलिस्ट विचारधारा पे चल रहा था। जब यूएसएसआर टूटा तो इंडिया को लगा कि हम भी सोशलिस्ट पैटर्न से अगर सिर्फ चले, कि मतलब सोशलिस्ट में मतलब क्या होता है कि जो ओनरशिप है दैट लाइज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये माना जाता है कि गवर्नमेंट जब काम करेगी तो वो वेलफेयर के लिए काम करेगी, और अगर कैपिटलाइज कर दिया जाएगा हर चीज को तो वो प्योरली प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगा। तो वो लोगों पे ध्यान नहीं देगी, लोगों के वेलफेयर पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। और नहीं बात, तो जब यूएसएसआर टूटा तो वो एक सेटबैक इंडिया के लिए भी था कि हम भी सोशलिस्ट पैटर्न पे इतना नहीं चल सकते, नहीं? तो इंडिया ने भी अपनी इकोनॉमी को खोला। देखो, एलपीजी का क्या मतलब होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, तो ये उससे मतलब नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइज करना मतलब क्या होता है? बेसिक टर्म बोलो, इसको छोड़ो। लिबरल होना मतलब, तुम लोग बताओ, लिबरल मार्किंग हुई मतलब आसानी से मार्किंग, एक समान नहीं, छूट देते हुए, एक समान नहीं। लिबरलाइज करना यानी कि यूनिवर्सिटी में इस बार लिबरल मार्किंग, ठीक है। L for liberalization, P for privatization and G for globalization. LPG के नाम से 1991 की पॉलिसी जानी जाती है। L means liberalization, लिबरल किया गया। किन चीजों से लिबरल किया गया? क्या लिबरल किया गया? पहले अगर कोई व्यापार करना भी चाहता था, गवर्नमेंट ने ऐसा रूल रेगुलेशन बना करके रखा था कि दैट पर्सन हैज टू टेक लाइसेंस फ्रॉम 10 to 12 अथॉरिटीज। मतलब अगर आप
चाहते हैं कि व्यापार करें, तो पहले ही आप सहम जाएंगे कि इतना क्लियरेंस कौन देगा और इतना पैसा कैसे लगाएंगे हम। ठीक है, लाइसेंसिंग का सिस्टम बहुत स्ट्रिंजेंट था, गवर्नमेंट जल्दी से लाइसेंस अप्रूव नहीं करती थी, तो व्यापार करने के लिए कोई हिम्मत नहीं करता था। दूसरी बात कि गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन कैपेसिटी पे भी बैन लगाया हुआ था कि आप इतने से ऊपर का प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, एक्सपैंड कर ही नहीं सकते, आपकी कैपेसिटी है तब भी। आप जॉब में थोड़ी है कि आप 9 to 5 काम किए और चले गए। जब आप बिजनेस करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में सोचते हैं, तब आप ये सोचते हैं कि कैसे मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो, कैसे हम और ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, उसको फैलाएं कैसे, राइट? यही होता है ना बिजनेस का पर्पस। तो सरकार ने ये बैन लगा के रखा था कि एमआरटीपी एक एक्ट पड़े हो गया, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। यस मैम। तो वो रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था। छोटी कंपनीज के ऊपर ये था कि आप 100 करोड़ से ऊपर का अगर करना चाहते हैं बिजनेस तो आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी, और परमिशन वो देता नहीं था। करप्शन बहुत ज्यादा था ब्यूरोक्रेसी में। सरकारी लोग कैसे काम करते हैं आपको पता है। अब तो फिर भी सुधरा, लेकिन तभी हालत और बुरी थी इससे भी। समझ में आई? तो उन चीजों को लिबरलाइज किया गया, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा दिया गया, लाइसेंसिंग सिस्टम को आसान किया गया। पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। जब सिर्फ गवर्नमेंट का बोलबाला होता है तो क्या होता है कि जॉब सिक्योरिटी होने की वजह से आप काम करें या ना करें, आपकी जॉब तो सिक्योर है ना। अगर एग्जाम ना हो तो तुम पढ़ोगे, ड्राइव ही नहीं आएगा पढ़ने का, जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। उसी तरह से अगर तुम्हारी नौकरी सुरक्षित है, तुमको पता है कि तुम काम ही नहीं करेगा, लोग जरूरत ही नहीं है काम करने की, क्या जरूरत है। लेकिन वही चीज अगर प्राइवेट में काम होता है और आपको पैसा दिया जाता है, आपको मालूम है कि आप काम नहीं करेंगे तो उसका कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ाएंगे अपनी। तो प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट प्लेयर्स को जब बुलाया गया, जब इनको अलाउ किया गया कि आप भी आइए और काम कीजिए हमारे यहाँ, तब क्या हुआ? तब प्रोडक्शन बढ़ने लगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने लगी, इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव होने लगी। और जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? हाँ, ठीक है। और सनी, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ योर इकोनॉमी विद वर्ल्ड्स इकोनॉमी। हम अपनी इकोनॉमी को सिर्फ इंटैक्ट अपने तक रखते थे, अब हम अपनी इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ दिए, दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ दिए। हमने अलाउ किया कि फॉरेन प्लेयर्स हमारे यहाँ आए और यहाँ पे भी बिजनेस करें। यहाँ से एचआर की चीजें चेंज होने लग गई। जब फॉरेन प्लेयर्स को इनवाइट किया गया, फॉरेन प्लेयर्स यहाँ आने लगे, तो उनके साथ साथ क्या आया? सिर्फ इकोनॉमी आई, उनके साथ उनका कल्चर भी आया, उनका स्किल भी आया, टेक्नोलॉजी भी आई, ट्रेड इन प्रैक्टिसेस भी आया, राइट? जैसे आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप यहाँ से पास होके जहाँ काम करेंगे, हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन हो, या हो सकता है वो इंडियन ना हो। इंडियन अगर नहीं होगी तो उसका जो ओनर होगा, मान लो कि वो जर्मन है, क्या वो अपना जर्मन प्रैक्टिसेस नहीं लाएगा ऑर्गेनाइजेशन में? लाएगा ना। तो आप न्यू चीजें सीखेंगे, आपको उसके तरीके से रहना होगा, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट की भी अपनी फिलॉसफी होती है ना। इंडियन ये सब जो हमारे यहाँ आया, विमेंस डे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटी छोटी चीजों का सेलिब्रेट कर दिया जाता है। हैलोवीन एक नया नया स्टार्ट हुआ है, देखे हो?
सोशल मीडिया है तो सब देखते ही होंगे। अभी हैलोवीन आएगा, अमेरिका में एक वीक का हैलोवीन सेलिब्रेट किया जाएगा। अब जितनी जितनी अमेरिकन कंपनीज है एक दिन डिक्लेयर कर देंगी कि हम लोग भी आज हैलोवीन पार्टी रखेंगे। सारे एम्प्लॉइज हैलोवीन बन के इधर उधर घूमेंगे, कुछ कुछ करेंगे, पार्टी करेंगे, गेम्स करेंगे। ये क्या हुआ? कल्चरल चेंज हुआ कि नहीं हुआ ना? इंडियन कंपनीज जो होती है उनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे इंडियन कंपनीज पैसा देखो अमेरिकन कंपनीज के बराबर तो नहीं दे पाती हैं, क्योंकि हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, पैसा थोड़ा कम होता है हमारे पास। अमेरिकन ये सब में पैसा ज्यादा होता है, इसीलिए लोग चाहते हैं कि हम फॉरेन की कंपनी में काम करें, एमएनसी में काम करें। एमएनसी के पास बहुत पैसा होता है, किसी एक छोटी कंट्री के जीडीपी जितना पैसा एमएनसी कंपनी के पास होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी महंगी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, राइट? तो इंडियन कंपनीज के बारे में बोला जाता है कि आपको भी तो कुछ अपना यूएसपी रखना होगा ना, हम बाहर काम करेंगे। टीसीएस हमारी कंपनी है ना? तो ये जो बाहर काम करती है, क्यों फॉरेन के लोग अपने कंट्री के कंपनीज को छोड़ के टीसीएस ज्वाइन करेंगे, जबकि टीसीएस पैसा में कुछ कम ही दे रही होगी? गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये हमारा यूएसपी होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेशनशिप इतना अच्छा बना करके रखते हैं। ठीक है, आपको ये समझ पाने में अभी थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब आप एम्प्लॉय हो जाएंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगा कि एचआर क्यों इम्पोर्टेंट है। और जॉब का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, जॉब में वेरियस अदर फैक्टर्स भी होता है जो आपको बहुत इम्पैक्ट करेगा। आपने ये सुना है कि किसी के मुंह से कि पैसा तो अच्छा देती है ये कंपनी, लेकिन वर्क कल्चर खराब है, ये सुने हैं? पैसा अच्छा देती है पर वर्कलोड इतना ज्यादा है जो कि अचीव नहीं किया जा सकता है, तो हम छोड़ दें। या मैनेजर एब्यूसिव है। आप सोचिए कि रोज यहाँ पे कोई सारे टीचर्स आए, ठीक है, और किसी एक बच्चे को पिन पॉइंट कर दे, उस बच्चे को रोज डांटे। अब परफॉर्मेंस अगर डाउन है तो वो रातों रात ऊपर होगी नहीं, उसमें समय लगेगा ना, धीरे धीरे। तो आपको वो चीज समझना होगा कि धीरे टीचर को कि वो धीरे 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 उनको मोटिवेट करते 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 देन वो चीज परफॉर्मेंस ऊपर जाएगी। अब सारे टीचर्स आए और एक एक करके रोज ये बात बोले, तुम कुछ नहीं पढ़ते लिखते हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी कहीं नौकरी नहीं लगेगी। क्वेश्चन पूछे, वो कुछ नहीं जानता हो, डेलिबरेटली उससे क्वेश्चन पूछा जाए, उसको ह्यूमिलिएट किया जाए कि तुमको कुछ नहीं आता, क्या उसको क्लास आना अच्छा लगेगा? बोलो तो, अगर तुम्हारी कॉन्स्टेंटली इंसल्ट होती रहेगी क्लास में तो क्या तुमको अच्छा लगेगा क्लास आना? ये जानते हुए भी कि क्लास करना इंपॉर्टेंट है, फिर भी तुम स्किप करोगे, है ना? यही होता है एम्प्लॉय के साथ में। अगर ऑर्गेनाइजेशन में गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं है, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में, आपके साथ काम करने वाले लोग भी अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं तो ये भी आपके दिमाग पे बहुत असर करती है। एचआर में ये हम लोग एक चैप्टर पढ़ाते हैं पूरा, ग्रीवांसेस में आता है ये, या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी झगड़ा हो गया और इसको सुलझाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जो ये समझते हैं कि झगड़े को ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में ज्यादा अच्छा करती है, उसका वर्क कल्चर ज्यादा अच्छा है। तो ह्यूमन का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया एलपीजी एरा के बाद, क्योंकि एलपीजी के बाद ही हमने ऐसी चीजों को देखना शुरू किया जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन। दो कंपनी मर्ज कर जाए म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, वोडाफोन आइडिया मर्ज कर गई ना। जैसे अब एक्विजिशन, ऊपर की कंपनी जो कोई सुपीरियर कंपनी है उसने नीचे की कोई छोटी कंपनी को अपने फायदे के लिए एक्वायर कर दिया, और जो छोटी कंपनी है उसको इतना पैसा मिला तो वो बेच दिया अपने आप को। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीद लिया, राइट? इस तरीके की चीजें हम लोग को एलपीजी की पहले मिली थी नहीं। तो अब देखो, जब ऐसी चीजें चेंज होने लगी
कि आपने जॉइंट वेंचर देखना शुरू किया, आपने एलपीजी देखना शुरू किया, आपने टेक्नोलॉजी का चेंज देखना शुरू किया, आपने ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस समझा, ऑनलाइन ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस होने लगा। अभी कितना सारा कोर्स है जिसमें तुम पैसा पेमेंट करके अपना स्किल अपग्रेडेशन कर सकते हो कर सकते हो ना। 1 मंथ 2 मंथ का कोर्स होता है, पेमेंट करो और तुमको फिर वो कोर्स कराएगा, फिर तुमको सर्टिफिकेट देगा और तुम अपने सीवी में वो सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हो कि तुमने वो कोर्स किया। लिंक्डइन कराता है बहुत सारा कोर्स। ये सब कैसे हुआ? चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंज ऑफ कल्चर, चेंज ऑफ वर्क, चेंज ऑफ इकोनॉमी की वजह से हुआ। वरना मैन पावर तो हमारे पास था ही हमेशा से, पॉपुलेशन तो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। फिर भी अगर इकोनॉमी को जरूरत है बाहर की, तो आप समझ सकते हैं कि हमें किस चीजों में जरूरत है। हमारे पास पैसे की कमी है, मैन पावर तो है ही, राइट। तो एलपीजी के बाद ये चीजें जो आई, ऑनलाइन ट्रेनिंग, एक्विजिशन, मर्जर, जॉइंट वेंचर, ये सब चीजें जब हमने देखना शुरू किया तो एचआर का भी पैटर्न बनता। मान लो कंपनी ए है, कंपनी बी, ये कंपनी इससे मर्ज कर दो। इस कंपनी के मिडिल लेवल मैनेजमेंट में 10 लोग मान लो काम करते थे, यहाँ पे भी 10 लोग काम करते थे। जब दोनों कंपनी मर्ज कर गई तो क्या 20 लोगों की जरूरत होगी? ओवरलैपिंग हो जाएगा ना। कंपनी क्या करेगी? कट करेगी। एचआर पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? और कट करेगी तो किसको कट करेगी? इसका स्किल सबसे कम है। तो फिर क्या बचा ऑप्शन? स्किल अपग्रेड करना, एनहांसमेंट करना, अपना वर्क कल्चर बढ़ाना। फॉरेन की कंपनी से compete करने के लिए जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट थी, उसको क्या होना पड़ा? कॉम्पिटिटिव होना पड़ा ज्यादा। अब देखते हो छोटी छोटी कंपनीज भी क्यों इतना, जो छोटे छोटे कंपनीज हैं वो सरकार को इतना कंडेम कर रहे हैं कि बिग बाजार है या इस तरीके की जो कंपनी है जो मार्ट में काम करती है, ये सब इतना छूट, इतना डिस्काउंट देती हैं कि हमारे यहाँ से कोई खरीदता ही नहीं है। तो आप नुकसान कर रहे हैं और ये जो बाहर की जितनी कंपनी है उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, राइट। आपने देखा है बिग बाजार के लिए बहुत सारा ऐसा ऑफर आता है जो आपको बाकी कोई जो दुकान आपकी लोकेलिटी में होगी वहां के लिए नहीं आता है। जैसे 5 किलो का सर्फ या 4 किलो का बड़ा पैकेट सर्फ कीजिए, बाल्टी फ्री, इस तरह की चीज। लेकिन आपके यहाँ जो आसपास में दुकान होगी उनके लिए ये ऑफर नहीं दिया जाता है, वो सर्फ उसी एमआरपी पे बेचेंगे। तो हम तो कस्टमर है, हमको कम पैसे में जहाँ मिलेगा हम वहां जाएंगे सामान खरीदने, पर जो बिजनेस कर रहा है उसको तो नुकसान हो रहा है ना। तो फिर क्या होगा? उसके एचआर पे, ह्यूमन रिसोर्स पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, कीप द क्लास टिल हियर टुडे। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर एचआरएम के इंट्रोडक्शन से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे।